So you people try and write the answer to this question. We have discussed everything. Everything is right there in your notes. But now it's not about knowledge. It's about how you write the answer. That is what will make the difference. When this question had come, I can tell you that almost none of the candidates wrote the proper answer to this question. Because no one knew. उल्टा सीधा किताबों में लिखा हुआ है कुछ भी बकवास नहीं. सच्ची में आप जाके सर्च कर लीजिएगा. किताबों में कुछ भी बकवास लिखा हुआ है court has stated that re-promulgation of ordinance is unconstitutional. What stupidity. Court has not said that. And आप देखिएगा 50 वेबसाइट्स मिल जाएंगी आपको यूपीएससी प्रिपरेशन की, उन्होंने भी यही सब उल्टा सीधा कॉपी मार के वहीं से लिख दिया एज इट इज. क्योंकि जब आपको कुछ आता नहीं तो आप क्या करेंगे, आप इधर उधर से कॉपी मारेंगे और लिखेंगे जो आता है आपको, है ना. हम तो स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं तो हमने पढ़ा है ना, केस जजमेंट पढ़ी है डिटेल में, तो इसलिए पता है. Anyway, so this is the question which was asked, है ना. And check out the last year's question as well. That also was a very similar question to this. Try to write the answer to any one or both or whatever. And if you want, you may also show your answer to me after the class. But लिखिएगा, try to write, because see, this should tell you that knowing something is one. मैं हमेशा आप सबको स्टूडेंट्स को बोलता हूं, knowing is one thing, expressing is another. It doesn't matter what you know in this exam, how much you know. Because if knowing was the only thing that was to determine success or failure in this exam, then no first attempter would have got through this exam. सब ऐसा परसेंटेज होता कि 40% सिक्स्थ अटेम्प्ट वुड हैव बीन क्वालिफाइंग, 30% फिफ्थ अटेम्प्ट, 20% फोर्थ अटेम्प्ट, और फिर वो डिग्रीज करता जाता और केवल 1 या 5% लोग जो हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते. पर ऐसा होता नहीं है इस एग्जाम में. और यूपीएससी को तो नहीं पता जब वो आंसर चेक कर रहे हैं किसी का कि ये आदमी फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट है. जो एग्जामिनर है उसको थोड़ा ना लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट है या सिक्स्थ अटेम्प्ट है इस आदमी की. वो तो बस कॉपी चेक कर रहा है विदाउट नोइंग एनीथिंग. तो ऐसा क्यों हो रहा है that 30% of the rank holders are first attempt, and in fact number of people those who get through in the sixth attempt are very less. The reason for that is that one, of course, this exam burns you out. अगर आप छठी अटेम्प्ट तक जा रहे हैं तो बहुत बड़े योद्धा हैं आप, है ना. तो अब वहां तक सब नहीं पहुंच पाते, छठी अटेम्प्ट तक इतना साहस नहीं होता हर किसी में. ठीक है, पहली बात तो ये, क्योंकि वो 6-7 साल मेंटेन करके रखना अपने आप को उस तरीके से, मोटिवेशन और अपन मेहनत करते रहना बहुत मुश्किल है. ऑल्सो द अदर मेजर रीजन इज दैट नॉलेज डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस इन दिस एग्जाम. व्हाट रियली मैटर्स इज हाउ यू राइट. व्हाट रियली मैटर्स इज how you express. Of course content is important, है ना. अगर आप इस आंसर में कुछ भी बकवास लिखकर आ जाएंगे, promulgation is unconstitutional and all that, you won't get marks. If you have to get marks, then you have to be precise, but at the same time you have to be structured. आपका आंसर जो आपको आता है आपने सब लिख दिया ऑर्डिनेंस के बारे में, उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे. आपने एक ऑर्डर में भी लिख दिया तब भी मार्क्स नहीं मिलेंगे. Your answer has to answer the question and not what you know about that particular topic. So see, also one more thing, I know that your batch started very late. मैं आपको बहुत बार ये बात बोल चुका हूं, I don't need to repeat this to you. And there may be many of you who may be targeting, I don't know, probably 2030 or whatever, है ना. ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं ना जो सीधा बोल रहे हैं जी हम 26 में देंगे पहला अटेम्प्ट. मैं एक चीज बस बोलूंगा, अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, that is if you are in final year or if you are a graduate already, and if you are eligible to write the exam, you should write the exam in 2024. Do not be in this foolishness of trying to save this attempt or whatever nonsense. Don't do that. Simply because, अगर आप, मैं इसलिए बोल रहा हूं because one student came to me today from another batch, and I think उनका बैच तो आपसे थोड़ा दिन पहले स्टार्ट हुआ था, RB20.
सो शी केम एंड आस्क्ड मी कि सर मतलब मैंने ऐसे ऐसे तैयारी स्टार्ट करी, फिर मैं उसके बाद घर चली गई 3 महीना एंड मैंने तैयारी नहीं करी एंड ऑल ऑफ दैट एंड नाउ आई एम फीलिंग गिल्टी। अब मुझे लग रहा है कि मेरे को तैयार नहीं कर अभी, मतलब आई शुड नॉट गिव दी 2023 अटेम्प्ट। मेरे को बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस माइंडसेट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दिस इज द माइंडसेट ऑफ अ क्विटर, एंड इफ यू क्विट इन दिस एग्जाम you are out that day itself. You have to fight. You have to be a fighter. This exam is all about perseverance and persistence. लड़ाई करनी पड़ेगी आपको, जूझना पड़ेगा, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। 700-800 सीट्स हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो और भी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज 300-350 सीट्स ही हैं आपके लिए आउट ऑफ 1000। इवन इफ आप रिजर्व कैटेगरी में, ऐसा कोई नहीं है कि मतलब यू आर on a lot of advantage, because वहां पे भी बहुत कंपटीशन है। जनरल में है तो बहुत ही मुश्किल है, नो डाउट अबाउट इट। ओबीसी में है तो भी बहुत मुश्किल है। इफ यू आर इन अ पीडब्ल्यूडी और इन SC ST कैटेगरी, इट इज स्लाइटली इजियर, बट इट इज नॉट वेरी इजी, लेट दैट ऑल्सो आई कैन टेल यू। मार्क्स तो तब फिर भी लाने पड़ते हैं, राइट, तब भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा डिफरेंस रह नहीं गया है अब, आई कैन टेल यू दैट। 10-15 मार्क्स इधर उधर, बट दैट्स ऑल, दैट इज ऑल इट इज, द डिफरेंस बिटवीन द रिजर्व्ड एंड द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। So in any case, the point which I'm trying to make is that if you think कि भाई एग्जाम मई में है, 5 महीने पहले ही आपने अगर हिम्मत हार दी है ना इस एग्जाम की, तो ये गारंटी से मैं लिख के दे रहा हूं कि आप आगे के 6 साल भी ऐसे ही चलता रहेगा आपका हिसाब, क्योंकि आप डर रहे हैं। किस चीज से डर रहे हैं? फेलियर से। जो चीज इनएविटेबल है इस एग्जाम में, उससे मत डरिएगा। Chances of failure in this exam, I have told you, are very high. There is a possibility that none of you will get selected. Simple as that. So accept and embrace that reality, and accept the fact that failure is a part of this exam. Do not run away from it. भागिए मत उससे। प्रीलिम्स नहीं होगा, तैयारी नहीं होगी तो नहीं होगी, पर मैं आपको यह भी बता दूं, तैयारी इस एग्जाम की कभी नहीं होती है। You will never be fully prepared. So for next 5-6 months, don't come with this regret, है ना, कि टाइम वेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जो बचा है हाथ में टाइम, शेड्यूल बनाइए, एक एक दिन फोकस कीजिए और अपनी मेहनत कीजिए, और अपने आप जो है चाचा चौधरी मत बनिए, है ना, और अपने आप जो है अपना कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज दिमाग लगाकर ये बोलें कि जी हमारा तो होगा नहीं, एनालाइज करने लगे। अभी तो आपने एग्जाम देखा नहीं, आपने एग्जाम दिया नहीं, तैयारी की नहीं, 6 महीने बचे हैं और आप अभी से क्विट कर रहे हैं। यू कांट डू दैट। फर्स्ट फाइट। अगर एग्जाम 28 मई को है एग्जाम, तो आप 27 मई को भी डिसाइड कर सकते हो। इनफैक्ट आप 28 मई को वहां सेंटर जाके भी डिसाइड कर सकते हो मेरे को एग्जाम नहीं देना है, पर पहले तैयारी तो कीजिए। आप 5 महीने पहले ही आपने हथियार डाल दिए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मारे जाओगे। सीरियसली, अगर आपने पहले ही इन द बैटलफील्ड, इफ यू हैव गिवन अप, डेथ इज इनएविटेबल देन, बिलीव मी। सो फाइट एंड कंटेस्ट एज मच एज यू कैन। कोशिश कीजिएगा पूरी। डू नॉट हैव दिस क्विटर्स एटीट्यूड। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, मैं ऐसे भी लोग जानता हूं जो कि बोले कि जी इस साल अटेम्प्ट नहीं दिया, अगली साल देंगे तैयारी अच्छे करके। उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं दिया कभी। और ऐसे लोगों का ये एग्जाम क्वालिफाई होता भी नहीं। अगर आप डर रहे हैं ना इस एग्जाम से, तो ये एग्जाम बहुत डरावना है, चीखें निकल जाएंगी, है ना। प्लीज डोंट बी स्कैर्ड, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस एग्जाम। दिस इज व्हाट इट इज, राइट? जस्ट fight as much as you can, right? Okay, thank you so much. I'll see you in the next class.